सॉल्व किसी को नहीं टेस्टिंग अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। तो क्या हो रहा है? सो you don't have to be a mathematician to use statistical techniques, as there are a lot of computer programs, softwares, they are available, and they do calculations and presentations. So the thing that we should know is which test should be applied, कौन सा statistical test कौन से data पे आपने apply करना है, और उससे क्या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको आती होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने डाटा की जो सेंट्रल लोकेशन है उसको हमने फाइंड किया, मीन, मीडियन या मोड हमने निकाल के, और हमें पता है कि अगर नॉमिनल डाटा होगा, अगर ऑर्डिनल डाटा होगा तो हम उसमें से मीन नहीं निकाल सकते। नॉमिनल नेम्स, ऑर्डिनल्स और ऑर्डर, वी कैन कैलकुलेट median, we can calculate mode, and then in case of interval and ratio data we can calculate mean, standard deviation, standard error. So if data is ordinal or nominal, we can check spread of data through confidence interval, that is the lower limit of confidence interval and upper limit of confidence interval, that if we repeat this experiment, for example we say 95 times, same data should come, तो इसको हम कहते हैं that is confidence intervals। और कॉन्फिडेंस लेवल्स पे फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करते हैं। तो इसी तरह से जो मीन है उनकी डिस्पर्शन देखने के लिए, हर एक डाटा वैल्यू की डिस्पर्शन देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो हमने वो सारे जो है वो देखे थे, हमें एक्सेल ने वो कैलकुलेट करके दिखा दिए थे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी खुद से कैलकुलेट करने की। हम जिस वेरिएबल को करना चाह रहे थे उसको हमने सेलेक्ट किया, या मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने सेलेक्ट किया, और जस्ट एक बटन प्रेस करने से उसने हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव
एनालिसिस करके दे दिया जिसमें मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग था. सो नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट टू वेरिएबल. हम देखना चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं. That would be done in inferential statistics. For example, a person that was working on depression and the age, for example, want to know about the relationship between depression and age. So that is called as inferential. When we draw an inference through, if there is a relationship between age and depression, then we would say that in our population depression is dependent on age. For example, if it is increasing with age, we would say that the older people or elderly, they would have more depression as compared to the younger. So for inference we are relating two variable, दो variables को हमने relate करना होता है. ठीक है. So for this we have this flow chart. We have to understand and we have to follow this chart in order to decide about data analysis. So first of all, we have to see what type of data we have in our Excel sheet. So there could be continuous data or discrete data. ये क्या होता है? Continuous और discrete. सुन रही हैं या गायब हो गए हैं? सर वो डाटा जो कंटिन्यू हो पॉइंट्स की फॉर्म में उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं और जो हमारे पास कह लें सॉलिड वर्ड्स हो. फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि एज, इनकम, हाइट, वेट, hemoglobin levels, RBCs, WBCs, they are continuous data. Discrete data is, क्या हो सकता है discrete data? Number of individuals. सर इंफॉर्मेशन होती है जो हम सर्टेन वैल्यूज में लेते हैं. कंटिन्यूस डाटा तो इसके अंदर नहीं होते. इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे एज डाटा में. इट इज जंपिंग. ठीक है. जंपिंग लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, number of people in class, number of chairs. So they are not in decimal point. So if your data is, so your data could be continuous data or it could be discrete. One variable could be continuous and another could be discrete. For example, if we have a variable that a person is having depression or not, ये continuous होगा या discrete होगा? अगर हम यस नो में डिप्रेशन पूछते हैं तो ये डाटा क्या होगा? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट. डिस्क्रीट होगा. कॉन्टिन्यूस डाटा कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल हम अगर सर उसमें कंटिन्यूस पूछ जैसे रहे हैं, हाइट, वेट, टेम्परेचर वगैरह. अगर हम उसमें एज भी पूछ रहे हैं तो वो डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा. फॉर एग्जांपल we have this. For example, we have age, gender, we have income, and we have like or disease. So age we know could be 12.1 year, it could be 22.5 year, it could be 21.3 years. तो ये पॉइंट्स में हो सकती है. जेंडर पॉइंट्स में हो सकता है? नहीं हो सकता. इट कुड बी फीमेल, इट कुड बी मेल, No. it could be female. So it is not in points. And then income, it could be in points. For example, it is 3000.98. ठीक है. So it could be in points. It is a continuous variable. So disease would be yes, could be no, could be yes. So these variables, they are nominal as well as they are discrete.
number of family members, for example, number of family members would be 2, 6, 7. They cannot be in points. So we may have certain variables that are continuous, and then there could be a variable that are discrete. So if we have continuous data, two variable that we are dealing, they are continuous, then we can find out, for example, if we have to relate age with डिजीज, अगर हमें एज को डिजीज के साथ रिलेट करना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू टू थिंग्स. फॉर एग्जांपल, हम वैसे कैसे कर सकते हैं एज को, अगर हम कहते हैं कि ग्रेटर एज के साथ जो है वो डिजीज एसोसिएटेड है या नहीं है, ये हमने देखना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सर हम डायरेक्टली तो नहीं ना एसोसिएट कर सकते उसको. क्यों? करने में क्या मसला है? सर उसके लिए तो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी. क्या इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, आपके पास इंफॉर्मेशन तो है ना, यही आपकी इंफॉर्मेशन है ना, यही डाटा है जो आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है. उस दिन भी हमने शायद इस तरह का कोई स्टोरी जो है वो बनाई थी. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डाटा, इनकम को हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है, तो इसमें अगर हमने एज को रिलेट करना है डिजीज़ के साथ तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ़ वी सॉर्ट इट, अगर हम इसको सॉर्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़, तो हमारे पास क्या होगा, नो वाले ऊपर आ गए हैं और यस वाले नीचे चले गए हैं. ठीक है, सो वी कैन सेपरेट देम, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ना. ठीक है, एज को हमने करना है, सो वी कैन कैलकुलेट मीन ऑफ दिस एज, दैट द पीपल दैट आर नॉट हैविंग डिजीज, हाउ मच average age. So it is 19.17, we round it up, so it would be 19.17. So we calculate mean for people that are having disease. By chance they are looking alike, but there is a difference. यहाँ पे जो है वो 0.09 का डिफरेंस है इसके अंदर. ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है कि जिन लोगों को डिजीज़ नहीं है उनकी एज जो है वो कितनी है, इट इज़ 19.17 ईयर, और जिन लोगों में डिजीज़ है उनकी एज कितनी है, 19.08. ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस है. हाउ would we know that they are different or not? ठीक है, we cannot. 1708 difference is there, but this difference could be by chance. ठीक है, हमने चेक करना है कि ये डिफरेंस वाकई पॉपुलेशन के, ये तो एक सैंपल है ना, तो जिस पॉपुलेशन से हमने लिया है उसके अंदर ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर हम 95 टाइम्स ये सैंपल लें इसी तरह का उस पॉपुलेशन में से, मीन हम तकरीबन कोई 3 और ये कितने 5, हम 8 लोगों का सैंपल 95 टाइम्स लें तो हमारे पास इसी तरह का वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, अगर इसी तरह की आती हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन के अंदर इसी तरह से एज का डिफरेंस है. लेकिन अगर नहीं आती तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे
पास जो ये डिफरेंस आया इट इज बाय चांस. दिस डिफरेंस कुड बी larger. For example, if it is like this, the age could be like किसी भी ग्रुप में, इसमें या इसमें एज का इतना डिफरेंस भी हो सकता है. इवन देन वी कैन नॉट डिसाइड आइदर इट इज बाय चांस, ये बाय चांस है, या अगर हम सैम्पलिंग करें तो ये ऐसे ही डिफरेंस आएगा. या पूरी पॉपुलेशन को अगर हम मेजर करें सब किए तो डिजीज वालों का मीन इतना होगा और जो नॉर्मल है उनका मीन इतना होगा. ये हमें अगर इतना भी डिफरेंस आ जाए तो हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते. इट कुड बी ड्यू टू बाय चांस. हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों में एक 12 ईयर का भी है, एक 27 ईयर का भी है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन. इसी तरह से यहाँ पे 10 ईयर का भी है और 25 ईयर का भी है. तो वेरिएशन हैं. तो अगर हम 95 टाइम्स सैंपल लेंगे तो वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा हो सकता हो कि ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाए. इसी तरह से अगर हम पूरी पॉपुलेशन को जब हम मेजर करें तो मे बी ये डिफरेंस ना आए. लेकिन हमारा सैंपल क्योंकि कम है, हम एक सैंपल के साथ डील कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है इसको हमने देखना है कि वेदर इट इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और इट इज़ जस्ट बाय चांस. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आवर डाटा इज़ नाउ कॉन्टीन्यूस. हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस क्यों है? क्योंकि हम एक वेरिएबल जो कैटेगरी है उसके साथ डील कर रहे हैं, दैट इज़ एज. एज इज़ कॉन्टीन्यूस. तो अगर हमारे पास दो ग्रुप होंगे कॉन्टीन्यूस डाटा में, देन वी मोस्टली अप्लाई a test. That test is called as, so if we have two groups, our data is continuous. आप इस नॉर्मल को और स्क्यूड को भूल जाएं फिलहाल, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है. सिर्फ ये याद रखें कि अगर हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस है एंड वी हैव टू ग्रुप्स, देन वी वुड अप्लाई टी टेस्ट. दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट टी टेस्ट. स्टूडेंट टी टेस्ट क्या करता है? इट कंपेयर्स मीन वैल्यूज ऑफ द टू ग्रुप्स. ठीक है. मीन वैल्यू जो है वो दो ग्रुप्स की. सो इट इज पेयर टी टेस्ट एंड नॉन पेयर टी टेस्ट. अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपका डाटा बेल शेप्ड कर्व बनाता है, हम इसको डाटा को हम अगर हम इस पे हिस्टोग्राम बनाएं, इट शुड मेक अ बेल शेप्ड कर्व. हमारे डाटा को बेल शेप्ड कर्व बनानी चाहिए. मैं इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके एक हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूँ, एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ. अगर वो बेल शेप्ड होगा तो इसका मतलब है हमारा डाटा नॉर्मल है. ठीक है. सो वी मेक अ हिस्टोग्राम. ये नाराज हो चुका है. ये कहता है कि चार्ट टाइप चेंज करें. तो वी मेक अ लाइन ग्राफ. ठीक है. लाइन ग्राफ हम बना लेते हैं. ये कैसा बना है? बेल शेप बना है? नो सर. नहीं बना बेल शेप. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है. ठीक है. अगर ये नहीं डाटा है. अगर ये डाटा बेल शेप्ड कर्व बनाता, ठीक है, तो ये नॉर्मल होता. तो नॉर्मल डाटा अगर हम इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, अगर हमारे पास डाटा नॉर्मल नहीं होता तो हम उनके लॉग ले लेते हैं. ठीक है. तो ये उससे बेहतर हो जाता है एज कंपेयर टू दी नॉन नॉर्मल डाटा. उससे
ये नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। सो इफ वी मेक ग्राफ अगेन देन द कर्व्स आर रिड्यूस्ड, ये कम हुई हैं, लेकिन अभी भी ये बेल शेप्ड कर्व नहीं बनी है, ठीक है। सो बेल शेप्ड कर्व शुड बी देयर फॉर नॉर्मल डाटा, नॉर्मल डाटा के लिए बेल शेप्ड कर्व होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ नॉन नॉर्मल डाटा। लेकिन मोस्टली जो रिसर्चर्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्टैटिशियंस, सो दे मे यूज टी टेस्ट एवरीवेयर व्हेन दे हैव टू कैलकुलेट मीन। जब भी उन्होंने मीन कैलकुलेट करने हैं तो उन्होंने क्या करना है, they would apply, if they have two groups then they would apply a t-test. So t-test जो है, it could be paired t-test or it could be unpaired or independent t-test, ठीक है। तो for Sir, example what is t-test? t-test is called as student t-test. It was developed by a person that was a student, so it is called as student टी टेस्ट। ये जो टी टेस्ट है ये अप्लाई होता है अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हों डाटा के, उनके मीन को आपस में कंपेयर करने के लिए, स्टैटिस्टिकली कंपेयर Okay, करने sir. के लिए दो ग्रुप्स के मीन को। यहाँ पे हमारे पास दो ही ग्रुप है ना, एक नो है और एक यस है, डिजीज Yes. प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ये हमारे पास दो एज ग्रुप्स हैं, एक एज ग्रुप जिनमें डिजीज एब्सेंट है और एक वो एज ग्रुप है जिसके अंदर डिजीज जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो वी वुड अप्लाई दिस टी टेस्ट। तो टी टेस्ट में हम क्या करेंगे, इन एक्सेल वी कैन अप्लाई दिस टी टेस्ट। हमने दोनों एजेस को उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई टी टेस्ट। वी वुड गो टू data, you go to data analysis and then we have this chart. In this chart there are t-test paired to sample for mean। paired का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल आप इसको भूल जाएं कि ये एज है, इफ़ इट इज़ हीमोग्लोबिन, हमने एक्सपेरिमेंट करने से पहले इन्हीं लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया और उसके बाद इनको इंटरवेंशन दी, कोई मेडिसिन दी, और उसके बाद फिर इन्हीं लोगों से हमने हीमोग्लोबिन हमने इनका कैलकुलेट किया, हमने टेस्ट किया। दैट वुड बी टेस्टेड विद पेयर टी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो पैरामीटर आप स्टडी कर रहे हैं वो सेम सैम्पलिंग यूनिट से आप फॉलो अप में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंट है ना, ठीक है। तो अगर हमने लैब में फॉर एग्जांपल Yes, sir. दो ग्रुप्स बनाए होते या एक ग्रुप बनाया होता और उसको हमने पहले इंटरवेंशन करने से पहले, कोई मेडिसिन देने से पहले, कोई इंसिडेंट होने से पहले उनके हमने पैरामीटर कोई कैलकुलेट किए होते और इंसिडेंट होने के बाद हमने कैलकुलेट किए होते और फिर हम उनको उन्हीं लोगों से, तो फिर अगर हम उनके कंपैरिजन करना चाहेंगे देन इट वुड बी कॉल्ड एज पेयर टी टेस्ट। उसके लिए पेयर टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, इनकी एजेस को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इट इज़ नॉट पेयर्ड। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे किसी भी टी टेस्ट को, आपका रिजल्ट तकरीबन सेम ही रहता है। अगर आपका डाटा बहुत बड़ा होगा तो फिर उसमें कोई जो है वो डिफरेंसेस आएंगे। सो वी then we have a t-test, two sample assuming equal variance, two sample assuming unequal variance, again it is same। अगर आप इसको किसी को भी अप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट एग्जैक्टली सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल पेयर को करें, सॉरी इट इज शुड बी अनइक्वल वेरिएंस फॉर एग्जांपल। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, कोई भी हो उसका मेथड एक सर ही। ये तो हमने यस और नो के लिए लिया है ना। अगर यस और नो के अलावा 5 लेटर स्केल होता है, जैसे कि एग्री डिसएग्री है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री है वो। सबर 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 ओके वहां सर। तक पहुंचेंगे तो फिर ठीक है। सो वेरिएबल 1 की अगर हमने इसमें रेंज फिर लेनी है, हम इसको क्लिक करेंगे, वेरिएबल 1 इज दिस वेरिएबल एंड देन वी गो टू वेरिएबल 2 रेंज।
तो वेरिएबल टू रेंज हमारा ये है, और उसके बाद लेबल्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट नहीं किए, यहाँ पे कोई लेबल्स नहीं है, सो वील नॉट चेक इट। अल्फ़ा जो हम रखना चाह रहे हैं वो 5%, ताकि अगर हम इसको रिपीट करें 95% यही रिज़ल्ट आने चाहिए, 5% जो है वो कोई और रिज़ल्ट आ सकते हैं। इट मीन 100 टाइम अगर हम करें 95 टाइम्स यही रिज़ल्ट आएंगे, 5 टाइम्स जो है वो डिफरेंट आए तो हमारे लिए वो इशू नहीं है। अगर ये 5 टाइम्स से ज़्यादा आ जाएंगे, इससे डिफरेंट आएंगे, तो फिर हमारा जो इसका मतलब है कि ये जो मीन के अंदर डिफरेंसेस हैं ये सारे बायस्ड हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, ये हमारे सैंपल के अंदर बाय चांस आ गए हैं। ठीक है, सो देन वी गिव इट आउटपुट रेंज। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें बता दे कि रिजल्ट क्या आना है, सो वी अप्लाई इट। ओके, सो वी हैव दिस टेबल दैट इज t-test with 2 sample presuming unequal variance for example। तो हमारा यही मीन था, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, मीन वैल्यूज, उसने मीन वैल्यू दे दी, देन गिवन वेरिएंस, देन गिवन ऑब्जर्वेशन, इसमें 3 थी इसमें 5 है, देन गिवन वेरियस अदर थिंग्स, आई पुट साइज, मीन डिफरेंसेस, हमने कहा मीन डिफरेंसेस हमें नहीं पता तो उसने खुद ही इसको 0 रखा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 एंड देन इज टी स्टैट p 1 टेल, t क्रिटिकल 1 टेल, p 2 टेल। इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यूज हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दैट इज p 2 टेल। ठीक है, इसकी मैं आपको बताता हूँ रीज़न। हम 1 टेल भी कर सकते थे। 1 टेल का मतलब ये है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ये होता कि डिजीज should be present in people that are having more mean as compared to those healthy। हमारा हाइपोथेसिस ये होता कि डिजीजेस उन लोगों को है ये डिजीज जिनकी एज ज़्यादा है। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस या फिर ये होता कि ये डिजीज उन लोगों में है जिनकी एज कम है, दैट इज कॉल्ड एज 1 टेल। लेकिन अब हमारा हाइपोथेसिस ये है कि डिजीज वालों की एज जो है वो नॉर्मल वालों की एज से डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस। ठीक है ना, दोनों तरफ हो सकती है। ठीक है, दोनों तरफ हो सकती है। अगर हमारा ये हाइपोथेसिस है देन वी विल सिलेक्ट 2 टेल। ठीक है, अगर हमारा ये हाइपोथेसिस हो कि जो एज है वो डिजीज वालों की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो फिर हम 1 टेल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वी हैव बोथ दीज 2 टेल एंड 1 टेल। तो इसमें अगर हम देखें तो p वैल्यू इज 0.715266, इट मीन इट इज अबाउट 0.72। तो ये जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0.05 जो हमने अल्फा रखा था। अल्फा का मतलब ये है कि हम इतनी वेरिएशन बेयर कर सकते थे, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमारे पास आ गई। इसका मतलब ये है कि 70 टाइम्स ये हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो डिफरेंट आएंगे अगर हम इसको रिपीट करें 100 टाइम्स। ठीक है, तो 72 टाइम्स के करीब जो है वो हमारे रिज़ल्ट इससे डिफरेंट आएंगे। हमें तो चाहिए था कि 5% अगर डिफरेंट आ जाते तो हम इसको बेयर कर सकते थे। ठीक है, सो वील से देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इस डाटा की बेसिस पे, इस सैंपल की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में जो एज का डिफरेंस है डिजीज़ का और जो नॉर्मल लोगों का है वो नहीं है।